का जाना शुरू हो जाता है। यस, so to survive, sorry, the symptoms of pain, inflammation, swelling, redness और paleness, तो these are the signs। तो जैसे बॉडी के अंदर कुछ ब्रेक होता है तो inflammatory signs मतलब the first defense of body will start। तो body will try to remove that foreign particle, that infective agent from the body। That's why these are the signs, rheumatoid or pallor, these are inflammatory signs and this is the defense mechanism। वहां बॉडी डिफेंस कर रही, बॉडी सेल्फ डिफेंस कर रही है, यही उसके साइंस है। और हम उसी डिफेंस के, बॉडी खुद वहां डिफेंस कर रही है, बॉडी उसे खुद हील करने की कोशिश कर रही है और हम उस डिफेंस मैकेनिज्म को कुछ अप्लाई करके, कुछ टैबलेट्स लेके, कुछ मेडिसिन लेके उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। सो these are these are nothing but the result of the body's reaction or body's the defense mechanism at work. To survival, the genetically governed defense system of a cell and also of the organism as a whole tries to manipulate the internal and external environment of the cell so that an invasive agent is kept at bay। Yes, the changes which occur in the cell and tissues in order to defend or repair the damage may essentially form the so-called pathology to that disease। तो जो भी पैथोलॉजी वहां पे होगी, जिस टाइप का वहां पे उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए, उस जो भी इन्फेक्टिव टॉक्सिन्स है उसे रिमूव करने के लिए जो भी वहां प्रोसेस होगी, दैट प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मैकेनिज्म। यस, तो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में किस टाइप का चल रहा है उस हिसाब से वहां पे पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे। So on the superficial level, it might appear to be purely materialistic approach to understand the pathology of the disease in every different disease। Yes, तो हर डिजीज की पैथोलॉजी अलग होती है according to the that defensive mechanism। So to study the changes occurring at a cellular or tissue level seems to have no depth as compared to the depth of understanding the man as a whole। और हमें अगर ये समझना है कि किस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म वहां हो रहा है, किस टाइप की पैथोलॉजी, क्या प्रोसेस वहां हो रही है, किस टाइप से इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर, बॉडी का वाइटल फोर्स, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब वाइटल फोर्स किस एक्शन में आया और किस टाइप का वहां पे बॉडी रिएक्शन हो रहा है, तो ये समझने के लिए हमें मैन एज अ होल समझना जरूरी है। स्टडी ऑफ पैथोलॉजिक बेसिस ऑफ अ डिजीज इज फार क्राई फ्रॉम होलिस्टिक अप्रोच ऑफ अ क्लासिकल homeopath। The skeptics may argue that that is particularization and not generalization। Yes, so what has happened at a cellular or tissue level is a particular, and why should we give it importance? तो जो टिश्यू लेवल पे हो रहा है, जो सेल लेवल पे हो रहा है, दैट इज पर्टिकुलर, बट वी नेवर, और हैनीमन, Dr. Hahnemann always says that we consider man as a whole, generalization, not a particularization। That's why we consider man as a whole, not the part or the single or cell or the organs। Yes, so what changes which have occur at a particular level of tissue or cell is a response not only of that individual cell or tissue only, but a response governed by the genes of that man as a whole। Yes, that's why we give the genetic constitutional syndrome, GCS। When we consider man as a whole, that means we are considering the genes, the genetic code of that person, and for that consideration we have to collect the symptoms from each and every system of the body। Yes, so that means mentals, physical, generals, etc। So it is his genome which
prompts every individual cell, whether in response to an invasion by bacteria or fungus or virus, the cell should inflame, indurate or destroy itself. Yes. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सर ने बता दिया कि तीनों डिफेंस यहाँ आ गए। जिस तरह से हम जीनोम कंसिडर करेंगे, जेनेटिक कोड करेंगे, क्योंकि जेनेटिक कोड हर सेल को गवर्न करेगा, हर सेल में जीन्स होते हैं, इसलिए एक सेल भी अगर कुछ होता है, उसका डिफेंस होता है, तो पूरे बॉडी का डिफेंस वहां पे अफेक्ट हो जाएगा। सो जीनोम विच प्रॉम्प्ट्स एवरी इंडिविजुअल सेल वेदर इन रिस्पॉन्स टू एन इन्वेजन बाय बैक्टीरिया और फंगस, और जब भी कोई भी इन्वेजन होगा बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट का, तो एक सेल में भी होता है तो पूरे सेल पे उसका इफेक्ट होगा। एंड वो इफेक्ट किस टाइप से होगा? तो फर्स्ट दैट इज द इन्फ्लेम, second is indurate, and third is destroy. The first defense mechanism is inflammation, that is sora. The second is induration, that is the psychosis accumulation, and the third is destroy or destruction of the cell is syphilis. So for the well-being of the person or individual concerned as a whole, the response may or may not change at different times in life, depending again on the genetic makeup of that individual. बहुत अच्छा लिखा है सर ने। द रिस्पॉन्स में और मे नॉट चेंज, जो डिफेंस बॉडी में है, जो माइजम लेके वो बॉर्न हुआ है, सर ने कहा है कि दैट रिस्पॉन्स में और मे नॉट चेंज डिफरेंट टाइम्स इन लाइफ, डिपेंडिंग अगेन ऑन द जेनेटिक मेकअप। यस, तो जेनेटिक मेकअप मतलब उसके जीन्स कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म डोमिनेटिंग माइजम लेके आया, उस पे डिपेंड करता है डिफेंस मैकेनिज्म। अगर वो स्ट्रॉन्ग साइकोसिस लेके आया है, तो बाय बर्थ उसके अंदर अगर साइकोसिस डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग है, तो लाइफ लॉन्ग उसके अंदर साइकोटिक डिफेंस रहेगा। या फिर सोरा लेके आए तो सोरिक डिफेंस रहेगा, या फिर सिफिलिटिक लेके आए तो सिफिलिटिक डिफेंस रहेगा। सो मेक अप depending again on the genetic makeup of the individual. We thereby conclude that whatever changes we see at the pathological level during assessment of the disease, so mostly each and every disease start with the inflammation and progresses into induration, afterward the destruction. So changes brought about to counter an injurious stimulus, that is the defense. All changes are governed by genetic makeup of the individual, and changes differ according to the state of the organism, such as the defense of the organism against the perseverance of the stimulus, and that too is governed by genetic apparatus. Yes. तो ये जो जीन्स है, ये जीन्स के अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है, किस टाइप का इस पर्सन के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफेंस ऑलवेज होते रहेगा। सो अगर कुछ भी होता है तो फर्स्ट डिफेंस जो उस जीन्स में है, उसी तरह से बॉडी बिहेव करेगी, बॉडी डिफेंस देगी। सो दिस मीन्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अटैक ऑन अ सेल और टिश्यू विल जनरेट अ नॉमिनल inflammation reaction initial to get rid of it, but failing which will change its mode of defense to induration or ulceration. Yes, अगर उस जीन्स में साइकोटिक डिफेंस प्रोमिनेंट है, तो वहां, क्योंकि हर पैथोलॉजी क्या कहती है कि हर डिजीज स्टार्ट विद इंफ्लामेशन, तो फर्स्ट वहां इंफ्लामेशन होगा, बट द इंफ्लामेशन का पीरियड बहुत ही शॉर्ट होगा। स्मॉल शॉर्ट पीरियड के लिए वहां पे इंफ्लामेटरी चेंजेस होंगे, और पट से वो चेंजेस कन्वर्ट होंगे एक्यूमुलेशन या फिर इंड्यूरेशन में, दैट इज द साइकोसिस। इफ प्राइमरी डिफेंस फेल, thus the intelligence of a cell in its defense cannot be undermined as it changes gears or modes of defense, and when needs arises, thanks to genetic apparatus, all the above changes are
clubbed under the name of pathogenesis. This pathogenesis pathology always depend on the genes. जीन्स में कौन सा डिफेंस आया, कौन सा डिफेंस है, कौन सी डिफेंस की प्रोसेस वहां स्ट्रांगली बैठी है, उस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से बॉडी उस हॉस्टाइल फोर्सेस को रिएक्ट करेगी। अगर जीन्स सिपिलिटिक माइजम लेके आए तो फर्स्ट वहां पे सोरा आएगा, इन्फ्लामेशन आएगा, बट दैट इन्फ्लामेशन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू psychosis or may not be converted into psychosis, directly converted into syphilis. Yes, तो वहां साइकोसिस आएगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन सोरा से स्टार्ट होके वो डायरेक्टली सिपिलिटिक में जा सकता है, या फिर सोरा से साइकोटिक जाएगा, साइकोटिक से सिपिलिस जाएगा। Yes, so this is all above changes are clubbed under the name of pathogenesis. So this is the chapter 4, defense mechanism or defense manifestation. यस, सो इस चैप्टर में अगर किसी को कुछ पूछना है तो फास्ट पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। यस, यस, someone else who want to ask queries? Yes, किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अबाउट द चैप्टर नंबर 4 सर? डिफेंस मैकेनिज्म? यस प्लीज। सर, अगर सिपिलिटिक बैकग्राउंड है, सॉइल अगर सिपिलिटिक है तो उसका मैनिफेस्टेशन सिपिलिटिक आएगा क्या? यस, अगर सिपिलिटिक पोल्यूशन जीन्स में है, स्ट्रांगली डोमिनेटिंग सिफिलिस उस कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो स्टार्टिंग तो सोरा से होगी, जैसे कि मेनिंजाइटिस होता है, न्यूमोनिया होता है, डेंगू होता है, देन कोरोना होता है, तो सिपिलिटिक स्टार्टिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, एंड दैट इन्फ्लामेशन डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू सिफिलिस। न्यूमोनिया direct convert into first inflammation of lungs and then convert into destruction. meningitis also है ना, कि फीवर है, meningitis हुआ, inflammation हुआ, and that inflammation goes into destruction, so patient goes into coma. So this is the सोरोसिपिलिटिक, मतलब वहां सोरा आएगा लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक होने की वजह से फास्ट प्रोग्रेस होगा डिजीज का इन सिपिलिटिक। यस, ओके। यस, एनीवन? बबलू राउत जी बोलिए। हाँ सर, उसमें साइकोसिस नहीं आएंगे क्या सर? वो सर नहीं, डिपेंड करता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में साइकोटिक कुछ मैनिफेस्टेशन या फिर साइकोटिक उस जीन्स में माइजम आया है कि नहीं आया। अगर दोनों पेरेंट्स सोरोसिपिलिटिक है, कोई मदर सोरिक है, फादर सिपिलिटिक है, तो वहां सोरोसिपिलिटिक आएगा, साइकोटिक बहुत शॉर्ट आएगा या फिर साइकोटिक आएगा ही नहीं। लेकिन अगर वो जीन्स तीनों माइजम लेके आए तो तीनों माइजम से वहां पे प्रोसेस होगी, सोरा भी आएगा, साइकोसिस भी आएगा, सिपिलिटिक आएगा। लेकिन अगर साइकोटिक है ही नहीं जीन्स में तो साइकोटिक आएगा ही नहीं, डायरेक्ट सोरोसिपिलिटिक। फादर साइकोटिक रहे तो फिर फादर या साइकोसिपिलिटिक वगैरह, फादर और मदर भी साइकोसिपिलिटिक रही तो उसमें फिर क्या आएगा सर? मदर उसमें सिपिलिटिक है, फादर सिपिलिटिक है, तो वहां सिपिलिटिक स्ट्रॉन्ग आएगा, राइट? नहीं, फादर साइकोसिस है फिर। हाँ, फादर वगैरह फादर साइकोटिक है और मदर सिपिलिटिक है तो वहां साइकोसिपिलिटिक आएगा। लेकिन वो भी दोनों में डोमिनेंट कौन है? अगर मदर डोमिनेंट है और मदर साइकोटिक है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे में साइकोसिस ज्यादा आएगा, डोमिनेंट साइकोसिस आएगा, और सिपिलिटिक डोमिनेंट नहीं आएगा। फिर वो साइकोटिक पर से सिपिलिटिक में जा सकता है, लेकिन साइकोटिक लंबी स्टेज रहेगी।
अपने को इसमें सिपिलिटी ही ढूंढना है सब, ज्यादातर सिपिलिटी ही ढूंढना है। आ, वो अकॉर्डिंग टू डिजीज, डिजीज वाइज हमें उस डिजीज वाइज हमें एनालिसिस करना है। वो क्या ढूंढना है अभी इस पे मत जाइए, अभी नहीं जो हुआ है ना वो प्रोसेस समझिए। सर उसमें जैसे सिप्लिटिक सॉइल है, लेकिन उसमें सोरा या साइकोसिस के ही है सिम्टम्स मैक्सिमम, नहीं क्या? जैसे बच्चे में ज्यादातर राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस वगैरह है, ऐसे नहीं क्या? तो उसमें फिर क्या ढूंढना है सर? बार 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 ऐसे होता होगा तो ब्रोंकाइटिस है। सोरिक स्टेज है तो मॉडल। प्योर सोरिक रूब्रिक लीजिए। हाँ। और अगर आपको वहां कुछ साइकोटिक दिख रहा है, बॉडी में नहीं है, स्ट्रक्चरली नहीं है, बॉडी में नहीं है, फिजिकल्स में आपको कुछ साइकोसिस नहीं दिख रहा है, लेकिन माइंड में कुछ साइकोसिस है तो आप ले सकते हैं। जैसे मोलस्कम वगैरह है पेशेंट में, छोटे बच्चों में वगैरह, मोलस्कम वगैरह, छोटे बच्चों में नहीं क्या सर? मोलस्कम वगैरह, वार्ड्स लाइक मोलिस्कम मोलस्कम। दैट हाँ। हाँ। मीन्स फिजिकली वो साइकोसिस में है तो आपको माइंड में भी साइकोसिस ढूंढना पड़ेगा, या फिर कुछ सिपिलिटिक मिलता है क्या वो ढूंढना पड़ेगा। यस, क्योंकि बॉडी ने हाँ। साइकोटिक डिफेंस दे दिया, इसका मतलब उसके पहले माइंड में आया ही होगा 100%, है ना। हाँ। तो माइंड से भी आपको साइकोसिस ढूंढना है। अगर साइकोसिस नहीं मिलता है तो सिपिलिटिक कुछ है क्या वो ढूंढना पड़ेगा। हाँ। हाँ सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, वन क्वेश्चन। सर अपन जो मदर्स हिस्ट्री जो है सर, हेलो सर, यस जो बोलिए। मदर्स हिस्ट्री जो बच्चे रहते हैं उसमें कौन से साल तक अपन ये उसमें यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के लिए इम्पोर्टेंस यानी इसको वैल्यू दे सकते हैं? कौन से साल तक, कौन से एज तक? जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मदर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, जैसे बाकी बाय बर्थ किसी को उसको एक्जिमा रहता है, बाकी जैसे अपने को 2 इयर्स, जैसे मोलस्कम आ जाते 1 इयर्स में वगैरह, तो फिर उसमें मदर हिस्ट्री वगैरह लेनी पड़ती है क्या सर? नो नो नो, हम्म। ओनली 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 जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आप मदर्स हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। देन जैसे कि 1 ईयर का पेशेंट है और 1 ईयर के अंदर ही उसे बहुत सारे वार्ड्स हुए हैं या फिर सिस्ट है, ट्यूमर है, तो कुछ तभी साइकोसिस मदर से लेके आए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कुछ हुआ क्या, तो आप पूछ सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, राइट। एक एक साल तक ही, 1 साल से आगे आया तो फिर? तो बच्चे में देखिए स्टार्टिंग किस तरह से हुई, कुछ सोरिक फर्स्ट फ्यू डेज में कुछ सोरिक कुछ हुआ था जो सप्रेस हो गया, देन इट कन्वर्ट इनटू साइकोटिक। हाँ हाँ। तो वो हिस्ट्री आपको लेनी पड़ेगी सिंस बर्थ। यानी कि उसमें मदर हिस्ट्री लेने की जरूरत नहीं फिर 1 साल के बाद में आया तो? यस। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन अगर आप मदर हिस्ट्री लेते हैं तो आपको एक बैकग्राउंड वहां पे मिल जाएगा कि मदर इज प्योरली साइकोटिक, देन वो साइकोसिस डोमिनेंटली बच्चे में आया है तो उसे स्टार्टिंग साइकोटिक से हो गई, है ना। सोरिक स्टेज आई होगी, निकल गई और साइकोटिक डेवलप हो गया वहां, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। यस। सर इपिलेप्टिक जर पेशेंट है चिल्ड्रेन, तो उसमें मदर हिस्ट्री लेनी जरूरी है क्या? ले सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो इपिलेप्सी के केसेस होते हैं उसकी पैथोलॉजी अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन द पैथोलॉजी एपिलेप्सी होती है, जैसे कि एसओएल है, देन कुछ इन्फार्क्ट है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन है, लाइक दिस सीपी है। तो ऐसे में मोस्टली मदर हिस्ट्री ही काम आती है। सर वो एक पेशेंट है, उसको यानी मदर यानी सीटी स्कैन में कुछ भी नहीं निकला है, और बाकी तो ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ उसको इपिलेप्टिक कन्वल्शंस है, तो इसमें क्या लेना चाहिए? अगर पैथोलॉजिकल कुछ नहीं है वहां पे, स्ट्रक्चरली कुछ नहीं है, तो दैट केस इज प्योर सोरिक केस। तो ऐसे केसेस में यस सर। आपको आफ्टर बर्थ कुछ हुआ था क्या,
वो देखिए, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7, 8, 9 मंथ में कुछ हुआ था क्या, वो देखिए। उसके बाद हिस्ट्री, मतलब वो कंसिडर करके उसमें अगर कुछ मिलता है पॉजिटिव फैक्टर तो आपको वो लेना पड़ेगा एट थर्ड ट्राइमेस्टर। थैंक यू सर। ओके, फिनिश। ओके सर। Okay, no more questions. So, chapter 5. तो ये फोर्थ चैप्टर का एक सारांश आपके समझ में आया होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। बॉडी जो भी सिम्टम देगी दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, कि बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है। अगर पेन हो रहा है मतलब वहां सोरिक डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी पे कुछ एक्युमुलेशन हो रहा है, इंड्यूरेशन हो रहा है, कुछ सिस्ट टाइप कुछ ऐसे आ रहा है, ग्रोथ टाइप, तो दैट इज साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म। और कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो सिपिलिटिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो बॉडी जो भी एग्जिबिट करेगी इट मींस इट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। नाउ चैप्टर 5, इन द मटेरियल बॉडी द सेल डिफेंस, है ना। तो अभी हमने ये सीखा था कि सेल के अंदर जीन्स होता है और जेनेटिक कोड होल बॉडी को गवर्न करता है, होल बॉडी को कवर करता है। तो वो एक सेल भी अगर इल होता है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म हमें दिखेगा, क्योंकि एक सेल की वजह से होल बॉडी वहां पे अफेक्ट होगी, तो बॉडी का डिफेंस वहां पे आएगा। नाउ इन द मटेरियल बॉडी द सेल डिफेंस, तो ईच एंड एवरी सेल का डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा। सो टू डिफेंड कम फ्रॉम द बेसिक फ्रेंच वर्ड डिफेंड्री, डी प्लस फेंड्री। सो डी मीन्स अवे फ्रॉम एंड फेंड्री मीन्स द स्ट्राइक। यस, so in short it verbally means to strike away from, to strike away from. The dictionary meaning of to defend, the strike away from is, it means to defend means guard, protect from harm or danger. So defense is an act for power of defending or guarding a living being or an organism, right from single cell amoeba to multicellular animals and humans, have been constantly engrossed for years defending itself against hostile environment. Life on this earth wants to go on. Every living organism has a basic love for life. Every living organism, है ना, हर किसी को अपने आप से प्यार होता है, लव होता है, दैट इज द बेसिक नीड. सो इट ट्राइज टू ओवरकम द डिफिकल्टीज दैट कम्स its way and tries to defend its spread of existence in this material world. Yes, तो हर किसी को जिंदा रहना है, हर किसी को सरवाइव होना है, इसके लिए हर कोई डिफेंस करेगा ही, क्योंकि 24/7 हमारे ऊपर होस्टाइल फोर्स का अटैक होते रहता है और हम उसको डिफेंस करते रहते हैं, क्योंकि हमें सरवाइव होना होता है और होस्टाइल फोर्स को, हमें जो भी मॉर्बिड फोर्सेस होते हैं हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना होता है, राइट. सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ बेसिक लव फॉर लाइफ. It tries to overcome the difficulties that come its way and tries to extend its period of existence in this material world. It uses all the powers that it has been endowed with to prolong its existence. The living organism may use its pseudopodia or limbs or tail or hands or feet or the cilia or even the chemical and biochemical activities in the body depending upon what is available for defense.
तो नेचर ने हर किसी को डिफेंस करने के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, खुद को बचाने के लिए हर किसी को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया है। तो हर किसी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अलग अलग है। किसी को हैंड्स है ना, कोई लेग से प्रोटेक्ट करता है ना। जैसे फिश है, फिश के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे ही उसे कुछ एनिमीज दिखते हैं तो वो केमिकल थ्रो करते हैं। सो दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म। एज अ रूल, anything in this world never has a single phase or single dimensional existence. If there is a day and there has to be night. If there is a color which is black, there has to be white. If there is a good, there has a bad, evil. Two opposites have to coexist if this world has to go on. Thus, if there are factors to prolong life, there are also factors which try to end life. So always these two forces are in action. Always, है ना, एक लाइफ देता है तो दूसरा लाइफ लेता है. So the factors that are hostile to others' life try to attack a living being in other that they themselves survive. The attacked organism uses all the means at his disposal to combat the hostile forces. There is thus a constant combat going on between the offensive and defensive forces, and result is survival all day. The cell is attacked not only by animate but also inanimate things. Symptoms produced due to this combat are what are identified as disease. So जो भी डिफेंस हमारी बॉडी करेगी, उस डिफेंस में जो भी नुकसान होगा, that is the disease. है ना, होस्टाइल फोर्स आया, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट्स हो, बॉडी के अंदर एंटर किया, बॉडी उसकी डिफेंस करेगी, है ना. उसमें जो भी बॉडी को खोना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिफेंस, दैट इज कॉल्ड डिजीज, द प्रोडक्ट ऑफ डिफेंस. यस. When normal cell is under stress, it adapts. जब भी कोई, जैसे कि सर ने चैप्टर का नाम दिया है, इन द मटेरियल बॉडी द सेल डिफेंस. तो सेल किस तरह से डिफेंस करता है ना, इस होस्टाइल फोर्सेस से खुद को कैसे बचाता है. तो इट एडप्ट्स द प्रोसेस. तो वो क्या प्रोसेस होती है? द नॉर्मल सेल इज confined to a narrow range of functional and structural change due to its genetic programming. तो उसके जीन्स में जो प्रोग्राम किया है नेचर ने, जो बाय नेचर उसके जीन्स में आया है, तो क्या है, किस टाइप से है. सो द जीन्स रेगुलेट द सेल मेटाबॉलिज्म, डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन and decide its reaction to stimulus or stress. तो जीन्स में किस टाइप की प्रोसेस वो जीन्स लेके आया है, उस टाइप से बॉडी, उस टाइप से वो सेल डिफेंस करेगा. The cell is nevertheless able to handle the normal physiological demand, so called normal homeostasis. Somewhat more physiological stress or some pathological stimuli may bring about number of physiological or morphological adaptations during which new altered state of homeostasis is achieved. This change is meant to increase the viability of the cell. Under increased demands, a coolie or a loader who is used to lifting heavy weight has his arms and forearms muscle gradually bulging in order to meet the increased demand on them. Increase in muscle mass is due to increase in size of individual muscles fiber. The workload is thus shared
by a greater mass of the cellular components, and each muscle fiber is spared of excess work and so escape injury. This adaptive response is called hypertrophy. Yes, this is called defense. सिंपल अगर एग्जाम्पल लेना है तो जैसे कि हम लोग जिम में जाते हैं, जिम में जैसा ही वेट लिफ्टिंग करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, तो उस मसल्स पे जैसे हम ट्राइसेप्स बाइसेप्स के एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे ट्राइसेप्स बाइसेप्स मसल्स पे स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आने की वजह से बॉडी का डिफेंस वहां एक्टिव होगा और उस मसल्स को स्ट्रेंथ देना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद वो मसल्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज उसको कम करना है। वो मसल वो स्ट्रेस को झेल पाने के लिए, उसको सहन करने के लिए उसको खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और जब वो खुद को स्ट्रांग बनाती है वो मसल, दिस इज कॉल्ड एडप्टेशन। अब ये डिपेंड करता है उस जीन्स पे, मसल्स की जो जीन्स है उस पे डिपेंड करता है कि एडप्टेशन किस टाइप का करना है। अगर उनके अंदर साइकोसिस है तो वो हाइपरट्रॉफी मसल्स की वहां होगी। अगर उस जीन्स में सिपिलिटिक है तो हो सकता है एक्सरसाइज करते करते वो मसल रप्चर हो गई, डैमेज हो गई। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। सो उस जीन्स पे डिपेंड होता है, उस सेल्स पे डिपेंड होता है कि उसके अंदर कौन सी प्रोसेस है, वो किस तरह से फिर रिएक्ट करेगा। अगर उसके अंदर सो रहा है तो ओनली वहां पे इंफ्लामेशन होगा, बार बार वो मसल्स पेन करेंगे, उस मसल्स को फिर उस हैंड को थोड़ी सी रेस्ट दिए तो वो पेन ऑटोमेटिकली चले जाएगा, मतलब वो इंफ्लामेटरी प्रोसेस वहां स्टॉप हो जाएगी। दिस इज सोरा। अगर वहां पे साइकोसिस है तो वहां पे एट्रोपी या फिर हाइपरट्रोपी होगी, या फिर अगर वहां सिपिलिटिक है वो जीन्स में तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस अगर लेके आया तो वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा। यस, दिस इज कॉल्ड एडप्टेशन। तो वो सेल उस तरह से एडप्ट करेगा और अपने में वो चेंजेस लाएगा। सो कन्वर्सली एट्रोपी इज आल्सो एन एडप्टिव रिस्पॉन्स वेयर देयर इज अ डिक्रीज in size and functions of the cell. If the adaptation crosses a limit, the cell undergo cell injury and causes the atrophy. Yes. So this is the adaptation of cell. किस तरह से वहां सेल एडॉप्ट करेगा प्रोसेस को। So when limits of adaptive response to stimulus are exceeded, cell injury occurs. Adaptation made by cells and tissues can be healthy or unhealthy. When cells or tissues adapt and homeostasis or equilibrium is reached with the changed state, it is still a healthy state. The overgrown muscle of athletics and bodybuilders are cellular adaptation but not disease. Yes. तो ये जो एडॉप्टेशन वहां हो रहा है, इट इज नॉट अ डिजीज। जैसे कि किसी किसी की बॉडी बहुत मस्कुलर होती है, दिस इज एडप्टेशन। और जैसे वो एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं, मसल अपने पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं, है ना। इसीलिए आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी बन गई, और कुछ दिन बाद आपने एक्सरसाइज छोड़ दिए तो ऑटोमेटिकली जो आपका बिल्डअप था उस बिल्डअप में आप आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एडप्टेशन। तो आप कंटिन्यूअसली अगर कुछ वर्क करते हैं तो अल्टीमेटली वहां कुछ एडप्टेशंस होंगे, बॉडी ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस एडॉप्ट करेगी, और जब वो स्टॉप होगा तो बॉडी अपने पोजीशन में आ जाएगी। सो अ चाइल्ड बोर्न विथ अ सेप्टल डिफेक्ट इन एन हार्ट may develop a load on the left ventricle and may undergo left ventricular hypertrophy, which may allow him to survive and reach normal homeostasis as age goes by. The child grows up with normal strength, stamina, functions, and lives a normal life even when he grows older. Yes. तो ये ऑटोमेटिकली होगा। सबसे पहले वहां हाइपरट्रॉफी होगी, है ना, और धीरे धीरे वो हाइपरट्रॉफी निकल जाएगी। जैसे एज ग्रो होगा
तो ऑटोमेटिकली वो डिजीज भी वहां क्योर हो जाएगा। दिस इज अ परफेक्टली कॉम्पेंसेटेड एडेप्टेशन विच इज नॉट नेसेसरी टर्म डिजीज एंड देयरफॉर नीड्स नो करेक्शन। यस, तो ऐसे केसेस में हम बहुत बार सुनते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, आप कुछ दिन रुक जाओ, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। यस, क्योंकि वो बॉडी का एडेप्टेशन है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वहां पे वो चेंजेस आए हैं और वो अल्टीमेटली जैसे स्ट्रेस कम हो जाएगा वो निकल जाएगा। सो इन फैक्ट एनी करेक्शन इन द पैथोलॉजी मे प्रिसिपिटेट disequilibrium and decompensation which could prove fatal. Yes, if in case of constant stimulus the adaptations are not sufficient to re-establish homeostasis, cell injury occurs. Yes, the cell injury can be reversible or irreversible. बहुत ही अच्छा सर ने यहाँ लिखा है कि the cell injury can be reversible or irreversible. Suppose हम जब कोई भी शूज या फिर कुछ फुटवेयर्स पहनते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें अगर वो हमें सूट नहीं हो रहे तो सिंपल की पैर में कहीं पे भी वो फ्रिक्शन की वजह से कंटिन्यूअस हम पहनते हैं तो उसके वो वहां पे चुभता है, या फिर फ्रिक्शन की वजह से वहां पे कुछ इंफ्लामेटरी साइंस दिखते हैं कि वहां पेन होना शुरू हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि जूता काट लिया, चप्पल काट ली, लाइक ऐसा बोलते हैं। लेकिन काट लिया मतलब क्या है? दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म। वहां पे वो कंटिन्यूअस स्ट्रेस हो रहा है, वहां पे प्रिक हो रहा है, कुछ तभी फ्रिक्शन हो रहा है, उस वजह से वहां के सेल्स हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ तभी प्रॉब्लम है, इसे चेंज करो या फिर इसे पहनो मत। लेकिन हम फिर भी पहनते हैं तो वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां पे जो सेल्स है वहां का डिफेंस चेंज हो जाएगा, वो खुद को एडॉप्ट कर लेंगे, वहां से बचने के लिए, उस पार्ट को खराब होने के लिए वहां पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस आएंगे, और ताकि हम उस पार्ट को उस चीज को बार बार ना पहने, उस पे ध्यान दे, हमारे माइंड का बॉडी का पूरा अटेंशन वहां जाएगा। लेकिन फिर भी हम अगर वो करते रहते हैं तो कुछ दिन बाद वो सेल्स को समझ में आएगा कि ये कुछ मानने वाला नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट सेल्स गोज इनटू सेकंड एडप्टेशन। फिर वहां का पार्ट धीरे धीरे रफ होना शुरू हो जाता है, लार्ज होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल ने सेकंड डिफेंस एडॉप्ट कर लिया है कि इन्फ्लामेशन से काम नहीं बना, तो हमें उस पार्ट को, अंदर के पार्ट को सेव करने के लिए ऊपर कुछ बैरिकेड तैयार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोटेक्टिव लेयर वहां पे लानी पड़ेगी कि अंदर का पार्ट सेफ रहे। फिर भी हम उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे कि ये हमारा पार्ट खराब होते जा रहा है, वहां पे ग्रोथ हो गई, मतलब हमारे लिए वो खराब हो रहा है, लेकिन बॉडी के लिए वो अच्छी चीज है। बॉडी उस आर्टिफिशियल चीज से सेफ रखने के लिए वहां एडोप्टेशन किया है, उस पार्ट को थिक बना दिया है। दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी एंड सेल्स। बट हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि वो पार्ट खराब, हम उस चीज को बोलते हैं कि वो पार्ट खराब हो रहा है, इसलिए हम वो कंटिन्यू अगर हम कर रहे हैं उस शूज को पहनना, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद हम मान ही नहीं रहे, तो बॉडी को उस पार्ट के सेल्स को थर्ड एडोप्टिव प्रोसेस में जाना पड़ेगा। फिर वो पार्ट इतना ठीक होगा, इतना ठीक होगा, इतना हार्ड होगा कि अल्टीमेटली वहां पे थर्ड डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट पार्ट गोज इनटू डिस्ट्रक्शन। वहां पे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। यस, तो दिस इज द थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ पे फिर उस सेल्स ने थर्ड प्रोसेस भी एडॉप्ट कर ली है, डिस्ट्रक्शन। यस, so this is the cell's defense mechanism. Yes, so when limits of adaptive response to stimulus are exceeds, cell injury occurs. Adaptation may be made by cells and tissues can be healthy or unhealthy. ये हुआ क्या हमारा? Yes, ये हो गया। So what can injure a cell? सेल को क्या इंज्योर करता है?
कौन से एजेंट्स है जो सेल को इंज्योर करते हैं, किस किस से सेल इंजुरी होती है. सो फिजिकल एजेंट्स लाइक मैकेनिकल ट्रॉमा, extreme temperature, burns and deep colds, sudden atmospheric changes, electrical shocks, radiations, magnetisms, cosmic radiations. These all can cause cell injury. Then oxygen deprivation, like hypoxia, decrease oxygen to cells. है ना, मोस्टली हिल्स पे ऐसा होता है जहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाती है. देन इश्केमिया, देन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू सेल्स कॉजिंग डिक्रीज ऑफ न्यूट्रिशन टू द सेल. देन केमिकल एजेंट एंड ड्रग्स लाइक ग्लूकोज और सॉल्ट इन हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन इन हाई कॉन्सेंट्रेशन. देखो ऑक्सीजन हाई भी हुआ तो भी सेल इंजुरी होगी और ऑक्सीजन लेस हुआ तो भी सेल इंजुरी होगी, है ना. इसीलिए जब ऑक्सीजन लगाना होता है तो SpO2 चेक करके ही ऑक्सीजन लगाते हैं. सो पॉइजन्स फॉर एग्जांपल साइनाइड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, सॉल्ट्स एक्सेट्रा. एयर पोल्यूशंस, insecticides, herbicides, carbon monoxide, asbestos, etc. Social stimuli, for example, alcohol and narcotics, ever increasing therapeutic drugs. These all are chemical agents and that cause the cell injury. Infectious agents like bacteria, fungi, parasites, viruses, etc. And immunological reactions, self-antigens, yes, these also can cause cell injury. Self-antigens, genetic dearrangements, nutritional imbalance, benumbing agents like xylocaine, etc. Any foreign proteins, etc. like bacteria, vaccinations, etc. So these are the agents which can cause the cell injury. तो इसके लिए हैनेमन ने 73 एफोरिज्म में ये सब दिया है. Like as regards acute diseases, they are either of such a kind as attack human being individually, the exciting cause being injurious influences to which they are particularly exposed. The exciting cause being injurious influences to which they are particularly exposed, excess input or an insufficient supply of it, like nutritional imbalance, severe physical impressions, chills, overeating, dissipation, strains, etc. Physical irritation, mental emotions, yes, mental emotions can cause cell injury, like anger, rage, है ना. हम बहुत बार सुनते हैं ना कि बहुत गुस्सा है फिर ब्रेन हेमोरेज हो गया, लाइक दिस. देन exciting causes of such acute febrile affections in reality, however, they are generally only a transient explosion of latent sora, which spontaneously returns to its dormant state of the acute disease, which were not too violent a character very soon spread. तो सर ने यहाँ पे बस्ट ऑफ लैटेंट सोरा, एक्सप्लोजन ऑफ लैटेंट सोरा का है, क्योंकि हम मोस्टली एक्साइटिंग कॉजेज जो है वो एक्यूट कंडीशन में कंसिडर करते हैं, एक्यूट कंप्लेंट्स में ही कंसिडर करते हैं. तो एक्यूट कंप्लेंट्स मोस्टली सोरिक होते हैं और सोरिक होने की वजह से वहां पे बस्ट ऑफ लैटेंट सोरा होता है. एकदम सडन वायलेंट कोई डिजीज आता है, दैट इज द बस्ट ऑफ लैटेंट सोरा. Yes. So very interestingly, Hahnemann has put down the cause of the disease as injurious influences. Cause of the disease as injurious
influences on an organism about 200 years back in the above paragraph, and the factors quoted are almost identical, except that he also gave importance to the mental emotions. Yes. So physical as well as mental emotions can cause the cell injury, and after cell injury, we call it is an disease, because वहां पे जो डिफेंस सेल करेगा वो हमें in the form of disease दिखेगा. Yes. So this is chapter number 5. Okay, so thank you. Yes. Yes, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं. यस राहुल जी बोलिए. हाँ सर, वो जो चाइल्डहुड में जो बच्चों को जो अभी सर ने दिखा है यहाँ पे नहीं क्या, जैसे छेद वगैरह रहा हार्ट को वगैरह नहीं क्या, तो उसमें फिर ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए क्या सर, क्या करना चाहिए फिर जो चाइल्डहुड में? अगर उस वजह से बेबीज को कुछ प्रॉब्लम्स है ना, ब्रेथलेसनेस है, रिकरेंट कोराइजा हो रहा है, रिकरेंट फीवर आता है ना, वोमिटिंग्स होती है, वेट नहीं गेन हो रहा है ना, ब्रेथलेसनेस होता है, चेस्ट पेन होता है, तो आप उसे ट्रीट कीजिए. यस, बट अकॉर्डिंग टू एज वो अपने आप भी हील होता है. लेकिन अगर ऐसी सिम्टम्स है जो पेशेंट बियर नहीं कर पा रहा है, पेशेंट वो उसे सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि मोस्टली छोटे बच्चे होते हैं, बहुत इसमें पेरेंट्स भी पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसे इसमें ट्रीट तो करना ही है. लेकिन हम ट्रीट कर रहे हैं सेकेंडरी सिम्टम्स को, राइट. कशाला लागते आपल्याला माहित नाही. यस यस राहुल जी, क्लियर. आवाज बीच में थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो रहा था ओके. अभी. यस यस, somebody else. सर सेप्टेड यूटेरस में क्या रोल है सर? सेप्टेड यूटेरस, Yes. इसमें आपको मदर हिस्ट्री लेना पड़ेगा, और मदर हिस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ था ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ यूटेरस. उस पीरियड में घर में कुछ सेपरेशन की बातें चल रही थी क्या, कुछ इसको फियर थी क्या कि कहीं हमें सेपरेट करने जा रहे हैं, या फिर हमें कोई सेपरेट कर रहा है, या फिर घर में डिवाइडेशन हो रहा है, लाइक दिस, अलग रहने के लिए कह रहा है, या फिर अलग हो गए, लाइक दिस. तो ये चीजें मोस्टली इसमें ये भी होता है बहुत बार, जैसे कि न्यू मैरिड वुमेन्स होते हैं, और दोनों फैमिलीज में कुछ डिस्प्यूट आते हैं, तो उस लड़की को उधर जाने नहीं देते, या फिर उन लोगों को इधर आने नहीं देते. दैट गर्ल फील्स सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली. उसे लगता है कि मेरा वो मायका टूट गया, मायके में जाने नहीं देते. फिर उस इमोशन की वजह से उस पार्ट में डिवाइडेशन आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है. यस. Okay, sir. All is depend on the emotions of that mother. क्योंकि एक्सक्यूज मी सर, यूट्रस इज फॉर फैमिली. यस, बोलिए. सर जैसे अभी नियर अबाउट 45-50 ईयर्स तक जो भी ऐसे माउथ कैंसर्स वगैरह रहते हैं, ग्रोथ रहती है, तो उसमें कैसे अप्रोच रहेगा सर फिर? जैसे यानी कि फिनोटाइप प्रिस्क्रिप्शन रहेगा क्या, उनको जीसीएस ही देना पड़ेगा? जीनोटाइपिक, जब जीन्स म्यूटेट नहीं होता है तो जीनोटाइपिक, जीन्स म्यूटेट हुआ है तो फिनोटाइपिक.
squamous cell carcinoma, mostly mouth cancers. So it is phenotypic. स्टेट सिमिलर देने के बाद फिर से जीसीएस निकालना पड़ेगा, नहीं क्या सर? नहीं, आपको फिनोटाइपिक ही प्रिस्क्रिप्शन देना है वहां। वो पार्ट पूरा हील होने के बाद फिर आपको, आप सोच सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो जीनोटाइपिक के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। यस। ये सर हिस्ट्री जो भी जब से वो ओरिजिन हुआ है तब से उसी से हिस्ट्री लेनी पड़ेगी नहीं सर? जैसे जो ग्रोथ वगैरह हुई है, जैसे माउथ अल्सर है, जीन्स कैंसर। जीन्स कब म्यूटेड हुआ, क्या हाँ जिसकी हाँ वजह से उस जीन्स, मतलब जीन्स में चेंजेस हुए, जीन्स म्यूटेड हुआ, वो सब आपको लेना पड़ेगा। और टंग है तो फिर ऐसा कुछ तभी आउट गोइंग इन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। यस, टेस्ट जैसे लिप्स में है सर, लिप्स में आ गया है तो, और माउथ भी उसमें है। लिप्स में लिप्स और है माउथ। तो लिप्स का भी हाँ अपर लिप है, हाँ लोअर लिप है, हाँ अपर लिप फादर, लोअर लिप मदर, बोथ हाँ लिप्स है तो वाइफ, पार्टनर। हाँ। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। यस। तो जिसे भी क्वेश्चन पूछना है ना तो वो चैट बॉक्स में डालने की बजाय अगर पूछते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हेलो हाँ, सर, इनफर्टाइल यूटेरस में क्या अप्रोच रहेगा सर? इन्फेंटाइल यूट्रस, यूट्रस कौन सा भी हो, इन्फेंटाइल हो या फिर एडल्ट हो, वो फैमिली के लिए होता है, उसका अटैचमेंट रिलेशंस फैमिली के लिए होता है। तो फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, फैमिली मेंबर से रिलेटेड अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो यूटेरस अफेक्ट होगा। जैसे मेरे पास पेशेंट है, अभी कंसीव होना चाहती है। जब इन्वेस्टिगेशन किए तो उसमें पता चला, उनको पहली बार पता चल रहा है कि जैसा यानी कि इन्फेंटाइल यूटेरस है करके। इन्फेंटाइल यूट्रस है, हाँ हाँ, मतलब यूट्रस की ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ नहीं हुई है। यस यस, मुझे लगा इन्फेंटाइल यूट्रस मतलब जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनमें कुछ अगर प्रॉब्लम है यूट्रस का तो उसके लिए पूछा था। इन्फेंटाइल यूट्रस है मतलब यूट्रस की ग्रोथ नहीं हुई। तो ग्रोथ क्यों नहीं हुई, व्हाई दैट लेडी डजंट वांट अ फैमिली, राइट? चिल्ड्रेन्स, फैमिली मेंबर्स, उसे ऐसा क्यों लगा कि भाई मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे फैमिली नहीं चाहिए, मुझे फैमिली बढ़ाना नहीं है। वो इमोशंस ढूंढो, क्यों ऐसा आया उसके मन में। अभी 1 साल ही हुआ है शादी को, तो पहले 1 साल में जो तो उन लोगों ने प्लानिंग रखा था, अभी उनको उनको बच्चा होना है। हम्म। तो 1 साल पहले क्या प्लानिंग किया था, क्यों ये कहां से आया, क्यों आया उसके माइंड में, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसा मैरिज को 1 ही साल हुआ है तो उसके कारण नहीं होना है बच्चा अभी, इस तरह से उनका प्लानिंग था। नहीं, लेकिन इन्फेंटाइल यूट्रस है वो तो उसके बचपने से ही है ना, अभी थोड़ी हुआ बराबर। है ना। तो उसको तो जब से लेना है ना, अभी का मैरिज के बाद का कोई रोल नहीं उसमें। तो ये उसके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन ये बाय बर्थ है। हम्म। तो आपको उसकी हिस्ट्री लेके कोई मतलब नहीं, उसके मदर की हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि उसके मदर के माइंड में ऐसा आया इसलिए बच्चे में वो, कि मुझे फैमिली चाहिए ही नहीं, मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, मुझे बच्चे तैयार करना ही नहीं है, इसीलिए बच्चे की कोई जरूरत नहीं। ऐसा उसके मदर को लगा, इसलिए बच्चे की जरूरत नहीं, तो फिर यूटेरस की क्या जरूरत है, मुझे बच्चे चाहिए नहीं तो यूटेरस की क्या जरूरत है रहेगी, इसलिए वो यूटेरस की ग्रोथ हुई नहीं। लेकिन जैसा यानी जो पेशेंट है तो उसके मदर को, जैसा पेशेंट और एक भाई, ऐसे 2 बच्चे। बराबर है ना, वो बराबर है, लेकिन इसके प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मदर को ये फीलिंग आई हुई है, ये थॉट्स आए हुए हैं। और ऐसे थॉट्स क्यों आए, हो सकता है उस टाइम पे घर में कुछ ऐसे झगड़े होंगे या फिर कुछ होगा, इसलिए मदर को लगा कि बच्चे
पैदा करके क्या फायदा, बच्चों को जन्म देके क्या फायदा अगर घर में ऐसा माहौल है तो। ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, इसलिए वो यूट्रस की ग्रोथ नहीं हुई। थैंक यू सर। यस। सो ओके, कैन आई क्लोज? Yes, sir. So thank you very much. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. sir. Bye bye. See you. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir.